Hello and welcome to Shriram's IAS. Today you all are welcome in this video series in which we are discussing one mains question in one session every day. Now this is the second session of economy and you have been attending all the other sessions of different faculties. Let's begin with the question, but before that, this is a QR code which you can scan for you to get a free mentorship session. Second, one more thing, that is, in order to get the PDF of this answer and this PPT, you can scan this QR code, join our Telegram channel and connect with us. Thank you. Let's begin with the question, and first of all, let's understand what is there in the question which was asked in UPSC 2024. Okay? So what was asked in question? Question is simple, that we need to discuss, what do we need to discuss? Merits and demerits of 4 labor codes in the context of labor reforms. लेबर मार्केट रिफॉर्म में कौन कौन से रिफॉर्म्स आ गए, अब इन रिफॉर्म्स के मेरिट्स क्या है और इन्हीं रिफॉर्म्स के डिमेरिट्स क्या है. वन थिंग वी नीड टू डिस्कस. सेकंड, व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस सो फार. So this question is broadly divided in different parts. The difference is that you need to understand where to apply what. ठीक है, सबसे पहले we need to understand the tail word discuss. That is, we need to give a discussion. In every discussion what we do, जब भी आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डिस्कशन में 2 चीजें रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड इन आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में क्या रखते हैं आप, एविडेंसेस. ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे इस क्वेश्चन में कैसे होंगे. इस क्वेश्चन में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे दैट विल बी अबाउट मेरिट्स. वी विल आर्ग्यू दैट दीज लेबर कोड्स हैव दीज मच ऑफ मेरिट्स. फॉर एग्जांपल, इट प्रोवाइड्स बेटर वर्कर सेफ्टी. It also provides better social security. It also provides a wider net for unorganized workers and gig workers. Now, once we understand that, we are giving arguments for merits and we will give also evidences for our arguments so that our arguments get verified and validated. One thing we need to discuss, we need to understand that what discuss means. That is done. After that, what should be the broad structure of this question is, first we will introduce this question, but in introduction what you need to address is the center point of this question. That is why this question has been formed. Question का main influence कहां से आया है, वो है लेबर कोड्स. ठीक है, एंड लेबर मार्केट. ठीक, अब लेबर कोड्स और लेबर मार्केट दोनों चीजों को एड्रेस करना है कहां पे, इंट्रोडक्शन में. ठीक है, वन थिंग अंडरस्टूड. सेकंड, जब हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब हम बॉडी के पार्ट्स डिसाइड करेंगे. बॉडी के पार्ट्स में सबसे पहले मेरिट्स आएंगे, दूसरा डीमेरिट्स आएंगे. किसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आएंगे, कंबाइन. हम मेरिट्स और डीमेरिट्स अलग अलग लिखेंगे, बट किसके, कंबाइन करके 4 के 4 लेबर कोड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस किए जाएंगे. वेदर दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019, Code on Wages 2019, whether that is Industrial Relations Code 2020, whether that is Social Security Code 2020 or whether that is Occupational and Safety Code 2020. 4 कोड्स जो हमारे पास है लेबर कोड्स, ये क्यों बनाए गए, बिकॉज 29 लेबर लॉज को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स में मर्ज कर दिया गया. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब इस क्वेश्चन के हम इन चारों कोड्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों डिस्कस करेंगे. दिस विल बी द 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट. सेकंड, हम क्या करेंगे इसके बाद, और इसी में हम लिखेंगे कि लेबर मार्केट रिफॉर्म्स क्या क्या लाए हैं इन 4 कोड्स के थ्रू. क्लियर. अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बॉडी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी, ऑफ दिस क्वेश्चंस बॉडी वुड बी प्रोग्रेस विच हैज बीन मेड सो फार. अभी तक प्रोग्रेस कितनी हुई है. So therefore 1, 2 and 3 parts of the question will be addressed accordingly. Last में we will conclude with the broader objective of labor market reforms and economy. कि अगर हम ऐसे labor reforms को introduce करते हैं और implement करते हैं on ground, तो इसका broader context और last में हमारे पास outcome क्या आएगा. That is the whole conclusion or whole summary of this, but futuristic in tone. That's it. So let's begin with the discussion.
ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारे क्या क्या पार्ट है? सबसे पहला मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेबर कोड्स. ठीक है, वन. सेकेंड पार्ट इज लेबर मार्केट रिफॉर्म्स and the other part of this question is progress made so far. अभी तक हमने कितना प्रोग्रेस किया है इस चीज को लेके, समझ में आ गया यहां तक? सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे बताओ जल्दी. इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला? दो चीजें लिखेंगे. वन इज लेबर मार्केट ऑल्सो, अनदर इज लेबर मार्केट रिफॉर्म्स ऑल्सो, दीज कोड्स ऑल्सो. सो व्हाट वी विल डिस्कस, लेबर मार्केट में वी विल मेंशन वन पॉइंट, दैट इज हाउ मच लेबर फोर्स डू वी हैव. इंडिया में वी हैव अ लेबर फोर्स ऑफ अराउंड हाउ मच? 50 crore वर्कर्स. ठीक है, and in such scenario, if we establish the significance of labor market by this fact, what we need to address is the second part of the question, that is the reforms which we have brought in. What are the reforms? We have consolidated 29 laws have been consolidated into 4 labor codes. This shall be our introduction. ठीक है, but why was this done? ये चीज क्यों की गई थी? It was done on the recommendation of Second National Commission on Labor. ठीक है, दैट विल बी आवर इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी आवर बॉडी? ठीक है, बॉडी में हम क्या करेंगे? बॉडी में देयर शुड बी वन आर्ग्यूमेंट, दैट इज व्हाट आर द मेरिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ न्यू लेबर लॉज. देन वंस वी एस्टैब्लिश द ग्राउंड फॉर मेरिट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम डीमेरिट्स लिखेंगे. ठीक है, व्हाट आर द मेरिट्स. और मेरिट्स में भी सबसे पहली चीज, मेरिट्स किस किस के लिए है, किस किस सेक्टर के लिए, और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास जिनके लिए ये मेरिट्स हैं. अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. मेरिट्स फॉर सबसे पहले कौन? वर्कर्स. वर्कर्स के लिए क्या मेरिट्स है हमारे पास? व्हाट मेरिट्स डू दीज कोड्स ब्रिंग फॉर वर्कर्स? सबसे पहला वेज रेगुलेशन. वेजेस को रेगुलेट करेगा. कैसे रेगुलेट करेंगे? सबसे पहले फ्लोर वेज विल बी सेट अप बाय सेंटर. फ्लोर वेज विल बी सेट अप बाय एंड फिक्स्ड बाय सेंटर. सेकंड, this floor wage must not be less than what? Minimum wage. ठीक है. Third point, once fixed, this floor wage, it should not be less than minimum wage. Second, it should be revised every 5 years. इसको हर 5 साल में रिवीजन करना होगा. थर्ड, इफ एनी पर्सन इज डूइंग ओवर टाइम, इट शुड बी रिवॉर्डेड हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस. 2 times रेम्यूनरेशन.
that is for workers. One point, that is wage regulation. Second point for workers, what else is it doing for workers? Is formalization. Formalization of labor market. कैसे फॉर्मलाइज कर रहा है लेबर मार्केट को? बाय ब्रिंगिंग सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी कैसे लेके आ रहा है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर? फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हाउ डज इट ब्रिंग सोशल सिक्योरिटी? कैसे लेके आ रहा है? सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये क्या क्या काम करेगा? लेबर कोड्स क्या क्या प्रोविजंस लेके आ रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए? पहला, गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्कर्स के लिए क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहला काम, दे हैव बीन इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन वर्कर डेफिनेशन. ठीक है, जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ दिस, बिकॉज दिस वोंट बी विजिबल टू यू. Gig workers have been included first time under the definition of worker. ठीक है, for social security purposes. One thing. Second, social security fund. Social security fund has been established by center. सोशल सिक्योरिटी फंड कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? सेंटर एंड स्टेट्स both will establish social security fund. This social security fund is for the welfare of whom? Is for the welfare of तीन लोग के लिए. किस किस के लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर. इन तीनों में जो वर्कर्स है, इन तीनों सेक्टर्स में जो वर्कर्स है, उनके वेलफेयर के लिए यह सोशल सिक्योरिटी फंड अरेंज किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है. ठीक है, वन थिंग. सेकेंड, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू राइट ओवर हेयर इज दैट, इसमें क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, दैट इज कि अगर सोशल सिक्योरिटी अगर ये लेबर कोड्स वर्कर्स के लिए लेके आ रहे हैं बेनिफिट्स, तो ये बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमने लिख लिए, गिग वर्कर के लिए लिखा, सोशल सिक्योरिटी फंड लिखा, और तीसरा क्या लिखेंगे हम? अबाउट ईपीएफ एंड, इट इज अबाउट ईपीएफ एंड ग्रेट्युटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेट्युटी. बोथ ऑफ देम हैव बीन नाउ revealed and opened for whom? Unorganized sectors. ठीक, for both organized and unorganized sectors. अभी तक बस ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था, अब अनऑर्गेनाइज के लिए भी हो गया है. ठीक है, दोनों सेक्टर्स इन दोनों स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इवन देयर इज वन मोर प्रोविजन, दैट इज ग्रेट्युटी अमाउंट के एलिजिबिलिटी के लिए, ग्रेट्युटी अमाउंट की एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता था? पहले, सबसे पहले 5 years ऑफ सर्विस वॉज रिक्वायर्ड इन एनी फर्म so that you will be able for gratuity, but now it has been reduced to only 1 year of service. 1 साल की सर्विस के बाद एम्प्लॉई इस काबिल हो जाता है कि उसको ग्रेट्युटी अमाउंट दिया जाए. वन थिंग. One more important point is that National Social Security Board नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एस्टैब्लिश किया जा रहा है. और ये किस लिए एस्टैब्लिश किया जाएगा?
in order to monitor the schemes which are for whom? For workers. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करेगा, जो इंटरस्टेट माइग्रेशन हो रहा है, उस इंटरस्टेट माइग्रेशन में वर्कर्स के वेलफेयर मेजर्स उनको बराबर पहुंच रहे हैं, उन तक बेनिफिट सारे पहुंच रहे हैं, दैट वुड बी इंश्योर्ड बाय दिस सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. ठीक है, क्लियर यहां तक? इट विल ऑल्सो मॉनिटर द इंटरस्टेट माइग्रेशन पोर्टल. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट, यहां तक जो हमने मेरिट्स डिस्कस किए, दीज वेर द मेरिट्स फॉर whom? For workers. Now we will discuss the merits for industry. इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या मेरिट्स है, किसके? इन 4 लेबर कोड्स में जो हमने रिफॉर्म्स लेके आए हैं उसके क्या मेरिट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज इट? फर्स्ट, इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट्स द इंडस्ट्री. कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लेके आ रहा है? पहली चीज क्या लेके आ रहा है? हायरिंग एंड फायरिंग को इजी कर रहा है. हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज has now become easy. अब ये इजी कैसे हो रही है? बिकॉज इट इज सेड दैट जो भी कॉर्पोरेट्स, जो भी फर्म्स विच हैव अराउंड 300 वर्कर्स, 300 वर्कर्स तक का जो ले ऑफ होगा, 300 वर्कर्स तक का जो ले ऑफ होगा, इट कैन बी डन विदाउट गवर्नमेंट परमिशन. This can be done without government permission. Hiring and firing हो सकती है 300 employees तक की without government permission. That is one provision mentioned in this. So that employers have some have some integrity and have some autonomy in their own domain. One thing. Second, जो भी fixed term employees है, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज मतलब जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गर टेन्योर के लिए होते हैं. दीज फिक्स टर्म एम्प्लॉइज जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड होते हैं विद फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, these employees now will be treated equally to the permanent employees. ठीक है, that is one more benefit which has been introduced for industry. Clear यहां तक? One more point which it has brought is industry के लिए, society safety and security के लिए जो हमारा ऑक्यूपेशनल कोड है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, वर्कर हैजार्ड्स कोड, उस कोड के अंदर इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड कि जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज है, जितनी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज है, दे नीड टू मेंटेन व्हाट? 2-3 चीजें. क्या क्या? वेंटिलेशन के साथ साथ क्लीनलीनेस, और क्लीनलीनेस के साथ साथ सैनिटेशन एंड हाइजीन. फॉर व्हाट? फॉर वर्कर सेफ्टी. वन मोर थिंग विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज सेफ्टी बोर्ड्स. हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी बोर्ड बनाएगी अपने यहां, ताकि वर्कर सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके. वन मोर पॉइंट, जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी इन व्हाट? इन 2 पर्सपेक्टिव्स. व्हाट इज दैट? इज एक तो रेम्यूनरेशन,
एंड रिक्रूटमेंट, दोनों में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? मेंशन क्लियर? यहां तक सब खत्म। नेक्स्ट, इसके बाद हम कहां जाएंगे? इंप्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट और इंप्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो मेरिट्स ये लेके आया है किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे इंप्रूव हुई है? सबसे पहली चीज, इंडस्ट्री की रिलेशंस होती कहां है? इट इज विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन। इट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन। व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन? और ये खराब कहां पे होती है? जब डिस्प्यूट्स होते हैं। एंड डिस्प्यूट्स के लिए ये लेबर कोड्स क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज, वी नीड टू रिड्यूस द डिस्प्यूट्स एंड वी नीड टू इंश्योर ग्रीवांस रिड्रेसल। और ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए क्या होगी? ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी कहां बनेगी? हर उस कंपनी में जहां पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, हर उस कंपनी में, हर उस फर्म में ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनेगी जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे। यहां तक क्लियर है? वन मोर पॉइंट विच वी नीड टू एड्रेस हियर इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स विल बी मेड। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाएंगे? फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। वन मोर पॉइंट विच वी शुड मेंशन हियर इज दैट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), this code mentions what? It mentions clear guidelines for strikes. ठीक है, अगर वर्कर्स कल को स्ट्राइक करना चाहते हैं, अगर हड़ताल करना चाहते हैं, तो उसकी गाइडलाइंस भी मेंशन्ड है यहां पे। देयरफॉर दीज आर द मेरिट्स फॉर इंडस्ट्री। वन, एक तो इंडस्ट्री के हमने देख लिए, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी मेंशन्ड मेरिट्स फॉर लेबर लॉज, मेरिट्स ऑफ लेबर लॉज फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के मेरिट्स हमने देख लिए 2 स्लाइड्स पे। तीसरे स्लाइड पे हमने देखा मेरिट्स फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के क्या क्या मेरिट्स हैं? 2 स्लाइड्स यहां पे। अब हम क्या देखेंगे कि इसके जो मेरिट्स है वो इकोनॉमी के लिए ओवरऑल कितने थे? मेरिट्स फॉर इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विच वी आर मेंशनिंग, जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिंगल लाइन पॉइंट है। ठीक है, यहां पे घबराना नहीं है, मैं बस बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लिख सको, आप नोट डाउन कर सको बस। बाकी ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 250 वर्ड्स के अंदर ही आंसर है। टेंशन लेने की बात नहीं है, 250 वर्ड्स का ही आंसर लिखा जाएगा यहां पे, उससे ज्यादा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर इकोनॉमी व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द मेरिट्स फॉर इकोनॉमी? मेरिट्स इकोनॉमी के लिए क्या क्या है? सबसे पहले, दीज लेबर कोड्स हैव इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा? बिकॉज दीज हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड, और आई कैन से डिक्रीज्ड व्हाट? ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को कम कर दिया है। सेकंड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए के साथ साथ इसने इकोनॉमी के साथ और क्या किया? इट हैज डिक्रीज द कंप्लायंस, कंप्लायंस कॉस्ट भी डिक्रीज हुआ है एंड कंप्लायंस के अंदर जो हर्डल्स आते थे उन हर्डल्स को भी कम कर दिया है। किसने? इन्हीं कोड्स ने। अब ये कैसे किया है? कंप्लायंस बर्डन
ऑफ MSMEs has been decreased. ठीक है, by what? By introducing digital platforms. ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेके आ गए और जिसकी वजह से क्या हुआ? वी हैव विटनेस्ड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। और ये इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कहां से आई है? दो साइड से, डोमेस्टिक एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों इन्वेस्टमेंट्स बड़ी है किसके बाद? इन लेबर कोड्स के बाद। क्लियर? यहां तक हमारे पास मेरिट्स आ गए सारे। नाउ वी विल सी द डीमेरिट्स ऑफ दीज कोड्स। ठीक है, What are the main demerits of this code? सबसे पहली चीज, there is less uniformity. Why is there less uniformity? Because labor जो subject है, it is a subject mentioned in concurrent list, जिसकी वजह से लेबर कोड्स जो नेशनल लेवल पे आए हैं इनको इंप्लीमेंट करेगा कौन? इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट्स, बट देयर इज वेरिएशन इन इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन में वेरिएशंस है, कोई स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है और कोई स्टेट नहीं कर रहा है। देयर इज अराउंड 20 स्टेट्स, only 20 states have issued what? Draft regulations and draft rules अभी तक इन लेबर कोड्स के अंदर। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट demerit is that there is limitation on the rights of workers have witnessed limitations। जो लेबर कोड्स वर्कर्स के राइट्स के ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे हैं वो क्या है? क्या क्या है लिमिटेशन? सबसे पहले देयर इज लिमिटेशन ऑन राइट टू स्ट्राइक। कौन कौन सी लिमिटेशन लगाई है यहां पे राइट टू स्ट्राइक के ऊपर? दो लिमिटेशंस। सबसे पहले 75% जो वर्कर्स होंगे किसी यूनियन के अंदर, दे शुड वोट फॉर अ स्ट्राइक। Second, there should be at least 60 days of notice period which should be given in advance to the employer by employees if they are planning a protest। ठीक है, दो डीमेरिट्स यहां पे हमने लिख लिए, 2-3। अब थोड़े से और डीमेरिट्स देखेंगे इसके। और डीमेरिट्स क्या है हमारे पास? नेक्स्ट, इन लेबर कोड्स में एक और चीज हुई है, दैट इज इट हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड। इट हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड्स ऑफ व्हाट? ऑफ ले-ऑफ्स। ठीक है, ले-ऑफ्स का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया बिकॉज मैंने अभी बोला था आपको 300 एम्प्लॉइज तक का ले-ऑफ जो है दैट कैन हैपन विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, विच हैज वीकन्ड, जिसकी वजह से वीकन हुए हैं क्या? वर्कर राइट्स। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दैट इज दीज लेबर कोड्स नाउ प्रोवाइड दैट फर्दर जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरप्रिटेशन होगा वो इन कोड्स में चल सकता है, और जो माइनर लॉज होंगे, माइनर रूल्स होंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। क्यों? बिकॉज देयर इज इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज कोड्स बाय डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक, आई कैन से जो भी ऑफिसर उस टाइम पे लेबर कमीशन होगा, कमिश्नर होगा, उसके पास ये प्रोरोगेटिव होता है और वो उन कोड्स को उसी तरीके से इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? समझ में आ गया यहां तक? अब हम इसके बाद देखेंगे क्या?
the third part of this question, that is progress which has been made so far. What is the progress made so far? क्या क्या हमने किया है अभी तक लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे, कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है और कितना इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सबसे पहले लेबर कोड्स का लेजिस्लेशन, ऑल द 4 कोड्स, 4 के 4 कोड्स पास हो चुके हैं और कहां पास हो चुके हैं? अक्रॉस स्टेट्स, बट देयर इज वैरीड इंप्लीमेंटेशन। ऑल द 4 कोड्स हैव बीन लेजिस्लेटेड, मतलब बन चुके हैं, बट वेरिड इंप्लीमेंटेशन बाय स्टेट्स। सेकंड, दैट इज देयर इज डिलेड इंप्लीमेंटेशन, delayed implementation of what? Delayed implementation of these labor codes at state level, because I earlier said also 20 states, only 20 states have yet finalized their draft rules and still are waiting for final implementation. ठीक है। Last point is about digitization. डिजिटाइजेशन का अगर हम ये पॉइंट लिखेंगे तो ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था और ई श्रम पोर्टल पे वी हैव विटनेस्ड थाउजेंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस, और ये वर्कर्स के लिए एक सक्सेस मॉडल रहा है और ये ई श्रम पोर्टल का सक्सेस मॉडल बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। देयरफॉर दिस हैज बीन द प्रोग्रेस सो फार, बट उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू मेंशन व्हाट, हमें ये कंक्लूड करना होगा ना, तो कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? 2-3 पॉइंट्स। सबसे पहला, वी नीड व्हाट? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होगा इन 4 लेबर कोड्स का। तो उससे क्या होगा? अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। उसके लिए क्या होगा? अगर ये कोलैबोरेशन हो गया तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें क्या होगा? वी कैन ऑल्सो इंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, दोनों में होगा। लास्ट में, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से वी कैन अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत by 2047. Clear? That will be the conclusion of this question. With this, I take your leave. Thank you for being into this discussion. Jai Hind.